ارشاد ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ فرمایا کسی بشر کا یہ مرتبہ نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کا یہ درجہ، یہ منزلت، یہ مقام نہیں ہے کہ اسے اللہ کلام کرے، اور اگر کرنا بھی ہو تو پھر تین طریقے اللہ نے بتائے، الا وحیا، یا وحی کے ذریعے کلام کرتا ہوں، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہوں، او یرسل رسولا، یا کوئی رسول بھیج کے بات کرتا ہوں، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ رسول وحی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ انہ علی حکیم، اور اللہ علی بھی ہے حکیم بھی ہے۔ ایک دو باتیں جلدی جلدی سمجھ لیں۔ کیا بتا رہا ہے اللہ کہ میں بشر سے کلام نہیں کرتا، اس کا یہ مرتبہ ہی نہیں، یا وحی کے ذریعے یا حجاب کے پیچھے یا کوئی رسول بھیج کر۔ تو بچہ بھی سوچے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ بشر سے نہیں بولتا، تین طریقوں سے بولتا ہے۔ پہلا طریقہ وحی، تھوڑی سی سوچ سے بھی کام لیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ وحی اور ہے، بشر اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بشر سے اللہ کلام کر رہا ہے وحی کے ذریعے، تو وحی اور بشر اور۔ او من وراء حجاب، یا پس حجاب، تو معلوم ہوا حجاب اور ہے، بشر اور ہے۔ او یرسل رسولا، یا رسول بھیج کر، پھر یہاں بھی تو کہو نا بشر اور ہے رسول اور۔ یہ تینوں چیزیں بشر سے الگ ہیں۔ آیت نے فیصلہ کر دے دلاور شاہ جی، جو رسول ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا، جو بشر ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا، چونکہ بشر پھر رسول کا محتاج ہو جائے گا۔ اگر دوسرے رسول کو بھی بشر کہہ دو گے تو پھر وہ اور کسی رسول کا محتاج ہوگا۔ ہاں، یہ تو پھر ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا، یا وحی کے ذریعے یا اچھا۔ اور حجاب یہ ضروری نہیں کہ کوئی کپڑا ہو، پردہ ہو، یعنی کسی بھی شے کی اوٹ ہے تو وہ حجاب ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ سے کبھی جھاڑی سے آواز آتی، کبھی پہاڑی سے، کبھی پتھر سے، ٹھیک ہے نا، کبھی آگ سے، یعنی وہ حجاب ہوتا تھا موسیٰ کے لیے۔ تمہارے مولا صادق سے کسی نے پوچھا، مولا موسیٰ کو جب پہلی بار شرف کلام بخشا اللہ نے، موسیٰ کے پاس کیا معیار تھا کہ یہ اللہ بول رہا ہے؟ مولا نے فرمایا فرق بڑے تھے مخلوق اور اس کلام میں، کیونکہ مخلوق میں جو بھی بولنے والا ہو وہ ایک جہت میں بولتا ہے۔ موسیٰ کو دائیں آواز آ رہی تھی، بائیں آ رہی تھی، سامنے سے آ رہی تھی، پیچھے سے آ رہی تھی، اوپر سے آ رہی تھی، نیچے سے۔ وہ سمجھ گیا جو شش جہت سے بول رہا ہے یہ مخلوق نہیں، اللہ یا وحی کے ذریعے بولے گا، یا حجاب کے پیچھے، یا کوئی رسول بھیجے گا۔ اور یہ باتیں بتا کر وہ کہہ رہا ہے انہ علی حکیم، چونکہ میں علی بھی ہوں حکیم بھی ہوں۔ اب اللہ نے خود کو علی اور حکیم کہا، بالکل اس سے اگلی صورت ہے سورہ زخرف، اس میں کہہ رہا ہے انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، یقیناً وہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہمارے نزدیک علی بھی ہے حکیم بھی ہے۔ میرے حسینی کے خلاف میں ہاتھ ہے میرا، یہ سارے دیکھ لو، 5 12 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، چادر تطہیر کی قسم، حقیقت کبریائی کی قسم۔ تمہارے مولا صادق سے کسی نے پوچھا، فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں سورہ فاتحہ میں کس کا ذکر ہے؟ مولا میں نہیں جانتا۔ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم نہیں پڑھتے؟ مولا پڑھتا ہوں۔ فرمایا سوائے علی کے کون ہو سکتا؟ میرے مشورے سے تو آیتیں نہیں آئیں۔ اس نے خود کو علی کہا، حکیم کہا، پھر اس کو علی بھی کہا، حکیم بھی کہا۔ نہیں، خدا کو اپنی خدائی زیادہ پیاری ہے یا تجھے زیادہ پیاری ہے؟ وہ اپنی توحید کی سرحدیں زیادہ جانتا ہے یا تو جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے میری خدائی ثابت نہیں کر سکتی، اکیلا علی کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے 99 اسماء حسنہ کا لباس سی کر
किबरिया ने अपनी किबरियाई के बदन को पहना दिया, कहा तू चल मेरे बंदों में, जब बंदे तुझे खुदा समझने पे तैयार हो जाएं वहां मेरा एक सजदा कर दे। तो वो एक सजदे में मुझे साबित कर देगा है कि ये अल्लाह नहीं, अल्लाह वो है जिसे ये सजदा कर रहा है। तो या बोलता है वही के जरिए, बोली तो नहीं ना बात, या पसे हिजाब या रसूल भेजकर, बस और कोई तरीका ही नहीं बताया उसने बशर से हम कलाम होने का। हमें तो उसने ये कह के माँ कान अल बशर, बशर का ये मर्तबा ही नहीं, ये मंजिलत ही नहीं, ये मकाम ही नहीं कि मैं उससे गुफ्तगू करूं। ये बस 3 तरीके बताए। दाएं बाएं अलम, इतना बड़ा या हुसैन लिखा हुआ है मेरे सामने, ये मिंबर का गिलाफ है, मजलिस के मालिकों की तुम पे भी नजर है, मुझ पे भी निगाह है। हाँ, उनकी हुजूरी में उनको हाज़िर नाज़िर जानते हुए, आजकल की किताब से नहीं, कम अज कम 1100 साल कदीम किताब से तुम्हें हदीस सुनाने लगा हूं। सर उठाना, जहन में रखना, या बोलता है वही के जरिए, या हिजाब के पीछे से, या रसूल भेजकर। इसके आगे तो कोई बात ही नहीं कि अल्लाह बशर से बोले। मोहम्मद इब्ने जरीर कुम्मी रिवायत कर रहा है, कहते हैं समय तो अबुल हसन रिज़ा अलैहिस्सलाम यक़ूलु ले अबी मन ज़ारल हुसैन इब्न अली औरफन ले हक़्क़िही कौन मिन मुहद्दिसिल्लाह फ़ौक़ अर्शिही। मोहम्मद बिन जरीर कहता है, मैं अपने बाप जरीर के साथ सरकार रिजा की खिदमत में गया। मौला ने मेरे बाप जरीर से कहा, जो शख्स हुसैन की ज़वारी करे, जो अली के बेटे हुसैन की ज़वारी करे, शर्त एक है, और फन बेहक के ही, हुसैन के हक को पहचानता हो, रवा रवी में न जाए, किसी के मजबूर करने से न जाए, किसी के कहने पर न जाए, सैर करने न जाए, इसलिए न जाए कि शियों के घर जो पैदा हुआ हूं ये काम भी कर लूं, हुसैन के हक का आरिफ होके जाए। सिला क्या है? फरमाते कौन में मुहद्दिसिल्लाह मिन फ़ौक़ अर्शिही, वो बंदा अर्श पे बैठकर अल्लाह से गुफ्तगू करेगा। कहने वाला अपने दौर का अली है, लक़ब उसे तेरे अल्लाह ने दिया है रिजा। क्या कह रहा है मेरे इमाम? मैं 2 टके का बंदा हूं, मुझे इस आयत का पता है। जो मुजस्सम कुरान है, जो बोलते हुए कुरान है, उन्हें नहीं पता कि अल्लाह बशर से बस इन 3 तरीकों से बोलता है। वो कह रहा है जो मेरी जद की ज़वारी करे उसके हक का आरिफ होकर, काना में मुहद्दिसिल्लाह मिन फ़ौक़ अर्शिही, वो अल्लाह से बातें करेगा उसके अर्श पे बैठकर। पहले एक थोड़ी सी गलत फहमी, तो बाज़ लोग ये शायद समझ रहे हैं भाई अर्श कोई तख्त है, उस पर कितने बंदे बैठ सकेंगे, और हुसैन के ज़ाहिर तो लातादाद हैं। भैया कुरान पढ़ना, वासिया कुर्सी समावात वल अर्ज़, अल्लाह कहता है जो मेरी कुर्सी है ना, 7 आसमानों 7 ज़मीनों पर मुहित है, यानी 7 आसमान 7 ज़मीनों को घेरे में लिया हुआ है कुर्सी ने। और ये तेरे रसूल पाक की मैंने हदीस पढ़ी है कि इन्नल कुर्सी मिनल अर्श का हलक़तिन मुल्क़ातिन फ़ी फ़लात, फरमाते कुर्सी अर्श के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे बर्र आज़म के मुकाबले में एक अंगूठी, इतना बड़ा है अर्श। कुरान कहता है अल्लाह बशर से इन 3 तरीकों से बोलता है। कहीं अल्लाह ने नहीं कहा मैं अर्श पे भी बशर से बोलता हूँ, और अली का अली बेटा कह रहा है बशर गुफ्तगू करेगा अल्लाह से, लेकिन मौला ने बशर नहीं कहा, मुझे खुद ही बात खोलना पड़ेगी, चूंकि बशर से तो वो बोलता ही नहीं, खुद बोलता ही नहीं, वो तो या वही के जरिए, और हुसैन के ज़ाहिर को वही नहीं हो रही, मैं मुहद्दिसिल्लाह खुद अल्लाह से गुफ्तगू हो रही है, या पर्दे के पीछे, यहाँ पर्दा भी नहीं, अर्श पे है। और युरसिला रसूलन, यहाँ कोई रसूल भी नहीं अल्लाह का पैगाम दे रहा, खुद खुदा से गुफ्तगू कर रहा है। नहीं, जितने शिया बैठे हो 2 में से एक बात की उंगली पकड़ लो जो बारे में आए, या 8वें इमाम के फरमान पे शक करके मजहब से खारिज हो जा, वरना मानना पड़ेगा हुसैन का ज़ाहिर बशरियत से बुलंद हो जाता है। सुल्तान करबला का ज़ाहिर
बशरियत को पीछे छोड़ गया, बशरियत से बाला हुआ तो अर्श पे गया, बशरियत से मावरा हुआ तो अल्लाह से महफ़ गुफ्तगू हुआ, वरना अल्लाह बराह रास्त तो बशर, वो कहते बशर की तो ये मंजिल ही नहीं, शान ही नहीं कि मैं उससे बोलूं, यहाँ बोल रहा है। इसी मिंबर से मैंने तुम्हें एक हदीस बताई थी सादिक आले मोहम्मद की कि मौला फरमाते हैं जो बंदा करबला जाता है, जब हुसैन की जरी को सीने से लगाता है, मस करता है, जो ही मस करके पीछे हटे अर्श से आवाज़ आती है, अबदी इस्तान फिल अमल, और मेरे बंदे अब नए सिरे से अमल कर। क्यों मालिक? पिछले वो जो गुनाहों के अंबार थे, फरमाया कद सिरतल यौमा का यौमिन वलदत का उम्मुक, आज तो वैसे ही हो गया है जैसे माँ के शिकम से आया था। अब माँ के शिकम से आने वाले बच्चे को मासूम कहते हो या नहीं? जिसकी मेटल की जरी मासूम कर दे। और पता नहीं, मैं अगर सितान इस पे बहस करना शुरू कर दूं ना कि कितनी दफा जरी तब्दील हो चुकी है, तो फिर अलग मजलिस चाहिए। दर्जनों जरिए तब्दील हो चुकी, कभी किसी बादशाह ने, कभी किसी बादशाह ने, कभी किसी बादशाह की मलका ने। लेकिन मौला ने ये नहीं कहा जो पहली जरी को मस करे, तो चाहे 1000 दरियां, करोड़ दरियां हो जाए, हुसैन को मस न करे, जरी को मस करे। जरी लोहे की बना लो, चांदी की बना लो, सोने की बना लो, ठीक है ना, लकड़ी इनसे अफजल है, क्योंकि ये जमादात हैं, वो नबातात हैं। हुसैन उस झूले में अभी नहीं सोया था जिससे फितरत ने पर मस किए थे, क्योंकि इधर आया, भरी बढ़िया किताबें पढ़। हाँ, रसूल ने अपनी फुफी सफिया से कहा, या सफिया, है फुफी कह रहे हैं या सफिया, दलील दे रहे हैं कि हमारे ज़ाहिरी रिश्ते हैं इनसे, वरना ये और हैं, हम और हैं। या सफिया नावेली नहीं इब्नी, मेरा बेटा मुझे दे। और मैं या रसूल अल्लाह लम नुनज़्ज़िफ़ बादो, अभी गुस्ल नहीं दिया, बस चेहरे जमाल पे सुर्खी जलाल आ गई। फरमाया अंते तुनज़्ज़िफ़ीनहु कद नज़्ज़फ़हुल्लाह, तू उसे पाक करेगी जिसे अल्लाह ने पाक करके भेजा। ये मैंने हदीस क्यों याद दिलाई देवा शाह जी? इसलिए कि आपके सामईन को पता चल जाए कि इधर आया और नाना ने ले लिया, और इधर फट से जिब्रील आ गया फुतरस को उठा के। हुसैन अभी गहवारे में सोया ही नहीं, बस निस्बत थी हुसैन का है, हुसैन इसमें सोएगा। नूरी को पर्दे दिए उस लकड़ी ने। और पढ़ना, हुसैन की जियारत में ये जुमले हैं कि करबला जो पढ़ी जाती है उसमें ये फिक्रे हैं। ज़ाहिर कहता है अल्लाह से, ए अल्लाह आज़ा फुतरस बे महदेही व नहनो आयज़ून बे क़ब्रिही, अल्लाह फुतरस ने पनाह ली थी इसके झूले की, हम पनाह ले रहे हैं इसकी कब्र की। नहीं, अब एक सवाल करना है डेरा गाजी खान के शियों से। हाँ देखो, शियों के घर पैदा होना कमाल नहीं, न मेरा न तेरा, कमाल है शियों के घर रह के शिया रह के मर जाना। जिसका पता नहीं कितने नंबर की जरी को छूने वाला बशर बशरियत से बाला हो जाए, खुद हुसैन तेरी तरह पैदा हुआ होगा। के पापोश चाट गज़नफर हो जाए, वरना रह जाएगी बस मजमा परानी।